जिसके पास भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। और अभी स्नेहलता जी को हम स्पॉटलाइट करेंगे। And by raising hand, I just mean the emoji, like you don't have to do it from the video, but that's okay. I think she's not too good with technology. So Snehलता दीदी को हाईलाइट कर दीजिए। राधे राधे। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको, अनम्यूट राधे करना राधे, पड़ता है। प्रणाम दीदी। राधे राधे। I am an old lady and a retired government servant. I have been supporting my family throughout my daughters have been got married off and are well off. They don't need any help from me. My son is has passed the engineering degree and in search of a job. I throughout my life I served everything in every aspect for my family. But now I came to know about Sri Maharaj Ji and follow him as my guide and everything. He is everything for me. My survival is for him only. But now that I am getting pension, I want to donate some portion of it to any charitable trust. But my family members are going against it, especially my main question. Can you just come to your question? What is your main question? I understand your feelings. My question is, Maharaj Ji is telling that wife is a servant of her husband. In this regard, if I will go against him and give any donate anything to any charitable trust, it will be a namaparad or what? Actually, our scriptures say that if someone is hindrance in your devotion, then it is not a namaprad to be against his views. Tulsidas ji also said, Jake priya na ram vaidehi, tajiye tahi koti veri sam, yadyapi param sanehi, bali guru tajo, अंत ब्रज बनितन तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भे सब मंगलकारी। वैसे किसी का विरोध करना अच्छी बात नहीं है, जहां तक हो सके एडजस्टमेंट करना चाहिए। बट if somebody is living in a family with you and it is impossible to adjust with him, then you must not leave your devotion. Let him say whatever he is saying. If you're not disturbing him, even then, if you go in satsang or you do your sadhana at your home and the other person is disturbed, it is not your mistake at all. That's why it is not aparadh. That's right. That's only I wanted to know, Didi. It will not be a nama pradhana. No, not at all. राधे राधे दीदी, प्रणाम दीदी। राधे राधे। आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए रेज हैंड कर सकते हैं, नॉट ऑन द वीडियो। आई सी लॉट ऑफ पीपल रेजिंग हैंड ऑन द वीडियो, बट अगर आप टॉप राइट स्क्रीन में मोर का बटन होगा, उसके नीचे रेज हैंड इमोजी ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। फॉर नाउ आई विल पुट उमेश शर्मा। भैया आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। सो उमेश भैया, गो अहेड, आस्क। राधे राधे उमेश भैया, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। Yes. Didi, I have been following Sri Maharaj Ji since the year 2005 and my devotion was very good. But I suffered from, some big disease, just like obsessive compulsive disorder. I discussed with Sri Maharaj Ji when he was alive. I discussed this problem with Sri Maharaj Ji
at Shyamasham Dham. I have been taking medicines and I have recovered it from fully, but I am not able to do the kind of devotion that I used to do in my childhood. Tears used to come, but now it's not happening. So, and medicine, I'm on medicine right now, but I don't know when the things will change. So the life is completely useless without shedding tears of love for God and Guru. That's the main goal, but that's not happening. So, actually, your voice is not very clear to me. I want to, Arti, if you understood, you just let me know that what is his question. Yes. उमेश भैया आप हिंदी में आंसर सुनना चाहेंगे? in any language, in any language, in any. दीदी वो बोल रहे हैं कि इनको कोई ओसीडी है, कोई वो एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इनकी दीदी एक डिसऑर्डर है ब्रेन में जिसकी वजह से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, जो पहले बचपन में जितनी कर पाते थे उतनी नहीं कर पा रहे, तो अभी उसके मेडिसिन ले रहे हैं, बट कब ऐसा होगा कि वो वैसे ही भक्ति कर सके जैसे पहले, जैसे बचपन में कर पाते थे बिना वो ब्रेन के डिसऑर्डर के? देखिए, bhakti depends on your resolve. You have to firmly resolve that you have to do bhakti. And for this kind of resolution, you must understand the philosophy, Adav Shraddha. You must know that without bhakti, your life is no life. Because without bhakti, everyone is living in this world like an animal, because animal can also arrange everything for themselves to live and to eat and everything. If we are also confined to only that thing, it means we are not a real human being. So those who do not understand the philosophy, who never heard the lectures of Shri Maharaj, they don't know what is real bhakti. That is still excusable. But if you know the philosophy and you know that without bhakti, you cannot make your life successful, even then, if you're not doing bhakti, then anything else is an excuse only. People disturbed. Who was not disturbed? You know the names of great devotees in the history of India. Tell me the name of that devotee who was not disturbed, who was not tortured by others, but still they did not leave their bhakti because they understood that bhakti is must for me to make my life successful. We have wasted many of our lives. Innumerable lives are wasted already. If we don't understand this till now, then we will waste this life as well. So you have to be firm. You have to have the firm determination that no matter what happens in my life, I will not leave my bhakti. Whenever somebody does bhakti, Ramakrishna Paramahansa said, everyone has to go through 3 stages: ridicule, opposition, and then acceptance. When you start something good, people ridicule, so that you will be discouraged. If you are not discouraged, then opposition. Then they will do lots of opposition to dishearten you. If still you are firm on your path, then acceptance, they accept it. It happens with Mirabai. It happens with all other great devotees as well, all the saints. You know the history. So we have to be very careful. We have to be firm upon our decision. We should know the philosophy and we should do our practice of devotion. We do our sadhana regularly with firm determination that I have to realize God in this very life. This is the only way. Is it clear? भैया आपका क्वेश्चन? Yes, thank you, Didi. Thank you for your advice. Okay, Radhe. Radhe Radhe. The next is the little kid Swar Samaya. You could go ahead and ask your question. राधे राधे। राधे राधे। तो मैंने पिछली बार पूछा था निष्काम प्रेम सकाम प्रेम का भेद, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तो ये द्वारिका रस और वृंदावन रस या मथुरा रस, उसके बीच का अंतर क्या है?
कहे का अंतर क्या है? स्वर क्या क्वेश्चन था कि ओ ये दीदी द्वारिका, वृंदावन और मथुरा के श्री कृष्ण में इसने पढ़ा है, कोई फर्क है तो क्या फर्क है वो पूछ रहे हैं। द्वारिका के श्री कृष्ण और मथुरा और वृंदावन। श्री कृष्ण वही है, श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वो द्वारिका के हो, बैकुंठ के हो, द्वारिका के हो, मथुरा के हो, वृंदावन के हो, श्री कृष्ण तो वही है, लेकिन उनकी लीलाएं अलग अलग हैं। जब द्वारिका में वो है तो वहां पर उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया अधिक, और वहां पर प्रेम का अभाव था। जब वो मथुरा में आए तो अपना ऐश्वर्य छिपा लिया, प्रेम अधिक दिखाया, जीवों को प्रेम अधिक दिया, और कहीं कहीं जहां जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने ऐश्वर्य भी दिखाया, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन भी किया। लेकिन ब्रज में आके उन्होंने अपनी भगवत्ता को पूरी तरह छिपा लिया, और हम लोग के समान बनके, एक साधारण मनुष्य के समान बनकर, जैसे ब्रजवासी थे, गांव था ना, वृंदावन एक गांव के रूप में था, तो ब्रजवासी वहां के भोले भाले गांव के ग्रामीण लोगों की भांति थे। तो उनके साथ उसी प्रकार उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं की सब आचार विचार रखते हुए उनके साथ घुल मिल कर उनकी भावना के अनुसार केवल उनको प्रेम दिया। कहीं शो ही नहीं किया कि वो भगवान है, कोई बहुत बड़ी चीज है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो सबसे अधिक रस बरसा है ब्रज में, उससे कम रस मिला क्योंकि थोड़ा थोड़ा उन्होंने प्रेम भी दिया, और कहीं कहीं जहां जरूरत पड़ी ऐश्वर्य भी दिखाया, इसलिए ब्रज से कम रस हुआ मथुरा में। और द्वारिका में तो द्वारिकाधीश बन के रहे, महाराजा धीराज बन के रहे वो, इसलिए सबसे कम वहां रस बरसा है। रस का अंतर है, जो लीलाएं हुई हैं द्वारिका में, मथुरा में और ब्रज में, उन लीलाओं के रस का अंतर है। श्री कृष्ण का कोई अंतर नहीं, श्री कृष्ण तो वही है। तो मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा है कि हरि मिलन की भी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर आप आंसू बहाते हो और भगवान श्री कृष्ण नहीं आते तो आपको अहंकार आता है। और एक टाइम महाराज जी ने फिलोसॉफी ये भी बताई है। क्लियर नहीं है स्वरा जी, आपकी आवाज आज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी स्वर आप बोलिए, मैं दीदी को कन्वे करूंगी आपका, क्या बोल रहे हैं आप? तो नारद भक्ति सूत्र में ये लिखा है कि हरि मिलन की भी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम आंसू बहाते तो भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, और आंसू बहाते तो अहंकार आ जाता है कि हमने आंसू बहाया तो नहीं आए। और एक टाइम महाराज जी की फिलोसॉफी ये कहती है कि हरि मिलन की व्याकुलता पैदा करो, तो ये विरोधाभास हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नारद भक्ति सूत्र में पढ़ा है कि अगर हम आंसू बहाएंगे तो हंकार आ सकता है। श्री कृष्ण को पाने की आशा में आंसू बहाते हैं तो आंसू से हंकार आता है, पर महाराज जी तो बोलते हैं आंसू बहाओ। तो ये बहुत ऑपोजिट थ्योरी है दोनों। तो हमने भी महाराज जी की कृपा से पूरा नारद भक्ति सूत्र तो पढ़ा है, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा जहां उन्होंने पहली बात तो ये लिखा हो कि आंसू बहाओ, दूसरी बात ये लिखा हो कि आंसू बहाने से अहंकार आ जाता है। अहंकार जाता है, भगवान के सामने दीन बनकर आंसू बहाने से अहंकार आता है। अगर दिखावा करो, थोड़ा सा आंसू आए और तुम जोर से चिल्ला के ऐसा शो करो कि हमें तो कहाँ का गोपी प्रेम प्राप्त हो गया है, शो ऑफ करने से अहंकार आता है। लेकिन स्वाभाविक अहंकार तो आएगा ही तब जब दीनता होगी, जब हम भगवान के सामने सचमुच हृदय से ये स्वीकार करेंगे कि हम दीनहीन पतित हैं, हम में ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिसके आधार पे हम आपको रिझा सकें, हमारे पास केवल आपकी कृपा का बल है। तो हे प्रभु, मुझे दीनहीन अकिंचन मानकर
मेरा कोई और सहारा नहीं है, एकमात्र आपका ही सहारा है, ऐसा मानते हैं जब हम हृदय से कि हम तो बिल्कुल असहाय हैं, हमारा कुछ भी और सहारा नहीं है, तो स्वभावतः आंसू आते हैं, दीनता बढ़ती है। और जब आंसू ना आए, एक आध आंसू कहीं आ जाए, कुछ और सोच के भी आंसू आ जाए और हम उसको शो ऑफ करें कि हमको बड़ा प्रेम प्राप्त हो गया, तब अहंकार आता है। इसलिए आंसू तो, भक्ति अगर तुम्हारी बढ़ेगी, थोड़ी दिल से जब भक्ति होगी तो आंसू तो आएंगे और आने चाहिए। प्रेम वारी बिनु सुन खगराई, अभी अंतर मल कबहू की जाए। बिना प्रेम के आंसू बहाए मन की शुद्धि ही नहीं होगी, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भक्ति का फायदा क्या होगा? आंसू तो बहाना कंपल्सरी है, लेकिन अहंकार के आंसू नहीं, दीनता के आंसू। थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. The next one is Sanjay Kumar. Sanjay Bhaiya, you can unmute and ask your question. बोलिए भैया। क्या प्रश्न है आपका भी? आप पूछिए। भैया आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूटेड हैं। ये भी बोल नहीं रहे। हाँ, तो भैया अनम्यूट करके पूछिए फिर आपको। हाँ पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी के प्रेमी जन का दर्शन कर पा रहा हूँ। आप पर महाराज जी बहुत कृपा है, मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि नहीं चाहते हुए भी महाराज जी में दुर्भावना क्यों जाती है? भैया सावधान रहना पड़ेगा हमें, और हमारा मन माइक है, गंदा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा मन घूम जाता है, संसार में चला जाता है, या महाराज जी के प्रति दुर्भाव बन जाता है। जब जब ऐसा हो कि महाराज जी के प्रति गलत विचार मन में उठने लग जाएं, तो अपने आप को धिक्कारना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम तो कितने जन्म अपने बिगाड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट सोच के। तो उन्हीं से रो कर प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री महाराज जी से कि हमें हमारी बुद्धि को ठीक कर दीजिए, मैं इतना अधम हूं कि मैं आपके ही विषय में गलत सलत सोच बैठता हूँ, इत्यादि भावना बनाना चाहिए। रिपेंट, हमें उसके लिए बार बार प्रायश्चित करना चाहिए। बस उसी से धीरे धीरे ठीक हो। साधना को बढ़ाओ, साधना बढ़ाओ, और महाराज जी के प्रति, जो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी महाराज जी के लिए दिए, उनको भी पढ़ो। जैसे जैसे आप महाराज जी के मन का महात्म ज्ञान आपके मन में बढ़ता जाएगा, तो ये फीलिंग भी अधिक बढ़ती जाएगी कि मैं अपराध कर रहा हूँ। और जब ये फीलिंग बढ़ेगी कि हम महाराज जी के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपराध से स्वभावतः बचने लग जाओगे। संसारी कामना को भगवतीय कामना कैसे बनाएं? बस ये जो कामना उठे वो जैसे वो आप भगवान की ओर उसको मोड़ दो कि हमारे प्रियतम, हमारे सर्वस्व वही है। पुत्र की कामना उन्हें पुत्र मान लो, सखा की कामना हो तो सखा मान लो, प्रियतम की कामना हो तो उन्हें ही अपना प्रियतम मान लो, भगवान को। वो सब पांचों भावों से उनकी उपासना हो सकती है। ये उनकी अकारण करुणा है कि हम तुच्छ जीवों को उन्होंने अधिकार दिया हुआ है कि हम चाहे जिस भाव से उनकी उपासना करें, वो उसी भाव से हमें स्वीकार कर लेते हैं और उसी प्रकार का आनंद देते हैं। कोई संसारी व्यक्ति मन में आ जाए तो क्या करें? क्या आ जाए मन में? किसी संसारी व्यक्ति की, स्त्री की, किसी की चाह मन में आ जाए तो क्या करें? तो हटाओ उसको। जहां मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। किसी स्त्री में मन जाए या किसी भी और जगह पर सुंदर स्थान पर मन जाए,
कि आपको लगता है कि आपके पत्नी की आंख बड़ी सुंदर है, तो आंख के मध्य में श्री कृष्ण को खड़ा करके देखो। जहां मन जाए वहीं ठाकुर जी को खड़ा कर दो। महाराज जी के शब्दों में, जब नंदपूत का भूत लग जाता है तो इस संसार सब अपना आप ही हाथ जोड़ के भाग जाता है। उस भूत से बहुत घबराता है संसार। इसलिए जहां मन जाए वहीं ठाकुर जी को खड़ा कर दो। ये अभ्यास करना पड़ेगा। धन्यवाद। राधे राधे दीदी। राधे। आपके थैंक यू भैया। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक भैया हैं, उन्होंने पूछा है कि वो प्रचारकों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जब महाराज जी की फिलॉसफी बोलते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन आंसर सुनते हैं, मुकुंदानंद भैया को पर्सनली मिले भी हैं, और भी कई प्रचारक के मंदिर बनने में डोनेशन देना चाह रहे थे। तो जब उन्होंने ऐसे सोचा कि उसमें डोनेशन दे, तो किसी बहुत पुराने सत्संगी ने उनको बोला कि महाराज जी को ही डोनेशन देनी है, कोई प्रचारक में को नहीं देनी। तो उनके मन में तो लगा कि ये एक फैमिली है और हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि तो क्या ये कुसंग है, ऐसे प्रचारकों को सेवा नहीं देनी चाहिए या देनी चाहिए? ये एक उनका क्वेश्चन है। नहीं, प्रचारक भी तो सेवा महाराज जी को ही देंगे। अगर तो कोई अपने लिए मांग रहा है, अपने यश के लिए या अपनी आवश्यकताओं के लिए, तब तो डायरेक्ट महाराज जी के यहाँ ही डोनेशन देना उचित है। लेकिन अगर कोई प्रचारक महाराज जी की ही सेवा में देने के लिए मांग रहा है, तो फिर तो एक ही बात है, चाहे प्रचारक को दीजिए और चाहे डायरेक्ट वहां दे दीजिए। आप किसी प्रचारक के संपर्क में अगर हैं और वो भी वहीं की सेवा के लिए आपसे मांग रहे हैं, तो देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन सब अगर अपने अपना कुछ बनाने में लगे हुए हैं, अपने लिए स्थान बना रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तब तो महाराज जी ऐसा ही चाहते थे कि हम डायरेक्ट महाराज जी को ही डोनेशन दें, वहां जेकेपी में ही हम दान करें। और यदि आप विशेष संपर्क में हैं किसी प्रचारक के, तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो भी आपको यही उत्तर देंगे। दीदी वो YouTube में ही सुनते हैं, पर वो पूछ रहे हैं कि अगर कभी कोई प्रचारक को देना चाहे ताकि वो ट्रैवल कर सके और महाराज जी का नाम दे सके और महाराज जी का नाम का प्रचार कर सके, इन चीजों के लिए अगर वो कुछ डोनेट आपकी करना अगर चाहे। किसी का प्रवचन वगैरह सुन के अंदर से इच्छा होती है कि आप उनको डोनेट करें, तो आप कर सकते हैं। प्रचारकों को देना कोई गुनाह नहीं है, आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी तो प्रचारक लोग भी, जो भी उन्हें प्राप्त होता है वो सबका केवल महाराज जी की ही सेवा में जाता है। कुछ लोग हैं जो अपना अपना बनाने में लगे हुए हैं, वहां अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू दीदी। एंड आवर नेक्स्ट, अभी मुझे यहाँ पे आई थिंक होस्ट नहीं हूँ, तो दीदी एक क्वेश्चन टाइप होके आ रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि साधक के शरणागति हिसाब से गुरु योगक्षेम करते हैं, लेकिन अगर किसी साधक का पतन हो जाए तो क्या गुरु उसका योगक्षेम वहन नहीं करते जब तक वे अपनी पुरानी अवस्था पर ना आ जाए? नहीं, गुरु तो योगक्षेम वहन करते ही हैं। जो शरणागत जीव हैं उनका वो योगक्षेम वहन करते हैं। और जब जीव का पतन हो जाता है तो वो अपने ही कर्मों से नीचे गिर जाता है। आप अगर भाव भक्ति की सीमा पर भी हैं और आपने किसी महापुरुष के प्रति अपराध कर दिया है, तो एकदम आप नीचे आ जाएंगे। जो स्थिति आपकी प्रारंभ में थी वहां आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महापुरुष तो फिर भी अंतःकरण में बैठा है और वो फिर भी चाहता है कि आपका कल्याण हो जाए, लेकिन आपके कर्म आपको इतना नीचे ले आते हैं कि उस समय फिर महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे जो साधक बहुत नीचे क्लास के हैं, अब वो प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहते, साधना करते ही नहीं, तो महापुरुष उनका योगक्षेम वहन भी कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे?
करना तो हमें ही पड़ेगा ना, साधना तो हमारे स्थान पर गुरु करेगा नहीं। तो जब हमसे अपराध हो जाता है और हम एकदम हमारा पतन हो जाता है, ऐसी स्थिति में गुरु से ही जब हम रोकर क्षमा मांगते हैं, भगवान के प्रति अपराध हो जाता है तो गुरु क्षमा कर देता है। ये उसकी उदारता है, दया है, करुणा है कि वो समझा बुझा के वो क्षमा कर देता है। लेकिन जब गुरु के ही प्रति अपराध हो गया तो भगवान नहीं कुछ कर सकते, फिर तो गुरु ही क्षमा करता है करुणा पूर्वक। वो तब करेगा जब आप अपने अंदर फिर से सुधार करेंगे, अपनी साधना करेंगे, रिपेंट करेंगे, सोचेंगे, बार बार रोएंगे ये सोच के कि हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो जितना प्रायश्चित करते जाएंगे उतना उतना गुरु अपने आप क्षमा करता जाएगा। और फिर युवक्षेम इसी को तो कहते हैं ना कि आपकी जो भी नहीं है उसे देना और जो है उसकी रक्षा करना। तो जब आपने अपना पतन अपने आप कर लिया तो गुरु तो फिर भी बैठा है करने के लिए, लेकिन हम कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ हम करेंगे, तभी तो वो उसका फल देगा। उससे पहले कैसे देगा? तो हमें साधना द्वारा प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो तो करेंगे युवक्षेम बहन, अनंत काल तक करेंगे। आपका पतन होता जाएगा, फिर आप उत्थान होगा, फिर पतन होगा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। Thank you, Didi. Next is Shaurya Soni. Go ahead, ask your question. Unmute and ask your question, please. हेलो, राधे राधे दीदी। राधे राधे जी, मैं वो महाराज जी के घड़ी के बारे में पूछा था लास्ट टाइम, आप पता लगाए क्या? महाराज जी जो रिस्ट वॉच कौन सा पहनते हैं वो पूछना था मेरे को। लास्ट टाइम आपको मैं डिस्कस किया था। मैं भूल गई आपका, आपने प्रश्न किया तो मैं तो सोचा कि इसे पूछ के आपको बता दूंगी। मैंने घड़ी तो देखी महाराज जी की रोज, मैंने कभी ना पूछा ना जानने की चेष्टा की वो कौन सी घड़ी है। इतना पता है वो कोई बहुत बढ़िया घड़ी है, किसी ने उनको दी थी, लेकिन मुझे घड़ियों के नाम ही नहीं पता। अच्छा, कहीं से पता चल सके क्या, मेरे को जानकारी मिल सके उस बारे में? कहीं जेन्युइन पर्सन से मेरे को पता चल सके क्या उस बारे में? क्या पता चला था? कहीं ये बात कहीं से पता चल सकती है क्या? पता करना, यानी ये कहाँ मिला, ये और कौन जानता है इस बारे में? महाराज जी कौन से घड़ी पहनते थे एक्चुअली, वो कौन जानता है? इस बारे में कौन नहीं जानता, मैं नहीं जानती, मुझे ये पता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उनकी कचौरी की एक रेसिपी थी जो महाराज जी स्वयं बनाए थे मसूरी में, वो बता सकते हैं या उसका कुछ? नहीं बनाई थी, कचौड़ी की रेसिपी बताई थी आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, मैंने रेसिपी ही कहा। महाराज जी एक लिस्ट बनाए थे, यानी रेसिपी कैसे बनाना है कचौरी, उसका मेन्यू टाइप, यानी उसमें क्या क्या डलेगा वो थोड़ा जान। अच्छा, और कुछ वो परफ्यूम अगर यूज करते थे भैया? यहाँ हम इसलिए आप कुछ स्पिरिचुअल, ये तो आप पर्सनल क्वेश्चन पर्सनली कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर साधना संबंधी प्रश्न करो जी। मेरे पास समय केवल उसी प्रश्नों का उत्तर है। हाँ, मेरे को महाराज जी के लीला संवरण के बारे में जानना है, क्योंकि उसके बारे में और कहीं डिटेल्स अवेलेबल नहीं, आपसे ज्यादा अच्छा और कोई बता नहीं सकते। लीला संवरण का मैं पूरा प्रवचन में अपने बता चुकी हूँ। आप एक किताब भी है पूरी मैंने लिखी है, जो महाराज जी का जिस दिन अवतरण जैसे जैसे हुआ है तब से लेकर गोलोक गमन तक की पूरी उसमें लीलाएं हैं। गोपाल सुधारस से आपको शायद मिली होगी या नहीं मिली तो आप उसको ले लीजिए, आपके सारे प्रश्न आपके संबंध में हल हो जाएंगे। जी। और हम लोग अभी जैसे एक क्वेश्चन और है, महाराज जी के रूटीन के बारे में जानना था, क्योंकि एक कि वो रात को 12 बजे वॉक करते थे, तो उस हिसाब से उनका रूटीन कैसा था? वो सोते कितने थे, फिर खाना वाना कब खाते थे? थोड़ा सा एक ऐसी लिखा है, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए कि वो 12:30 बजे से उठ जाते थे, उठ के राधे राधे वॉक करते थे और राधे बोलते थे, तो सारे लोग उठ के सभी उनके पीछे राधे बोलते थे। बस उसके बाद सुबह से लेके और रात तक उनका केवल जीव कल्याण का ही रूटीन होता था।
लोग बस जितनी देर वो खाना खाते थे या 1-1.5 घंटा बीच में दिन में रेस्ट करते थे, उसके अलावा पूरे टाइम वो सत्संगियों के साथ होते थे और कुछ न कुछ उनकी लीला, अब रोज नई नई लीलाएं होती थी उनकी, किस समय क्या वो लीला कर बैठेंगे। सब लोग जहाँ वो उठे भागते थे लोग, अरे महाराज, कभी कभी महाराज जी का भी सोने का टाइम और महाराज जी बाहर आ जाते थे, लोग एकदम भाग पड़ते थे, अरे महाराज जी उठ गए, क्योंकि हर क्षण लोगों को ये रहता था पता नहीं महाराज जी समय क्या लीला करेंगे तो हम वंचित न रह जाएं उसे देखने से। तो पूरे टाइम बस महाराज जी का एक ही काम था, जीव कल्याण का। तो वो सत्संग, वो बात भी करते थे, मजाक भी करते थे, या शाम को बैठ के रंगीली सभा करते थे। तो हर चीज में केवल, चाहे वो वार्ता के रूप में हो, कीर्तन के रूप में हो, प्रवचन के रूप में हो, किसी खेल कूद के रूप में हो, एक ही लक्ष्य उनका होता था, उसका मेन विषय की होता था जीव कल्याण। बस यही महाराज जी का रूटीन था मेन। जी, थैंक यू राधे राधे। थैंक यू भैया, राधे राधे। द नेक्स्ट वन इज दिव्या। दिव्या, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। आप लास्ट टाइम भी रह गई थी, तो अभी आप पूछ सकती हैं अपना क्वेश्चन। दिव्या, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। पूछो दिव्या। Yeah, let's spotlight her. हेलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। आप, हाँ, राधे राधे दीदी। राधे राधे, जरा जोर से बोलना। Yeah, Didi. Didi, like every day I'll be praying to Maharaji to help me get tears and to help me get dinata and detachment, to take me to ashram so that I can serve Gurudam and all. And like easy is also considered as sakam bhakti or what? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। दीदी वो बोल रहे हैं कि महाराज जी से मांगती हैं आंसू और सब कुछ, भक्ति मांगती हैं, तो क्या वो कुछ मांगना या इच्छा रखनी सकाम भक्ति हो जाएगी? क्या वो निष्कामता से परे हो जाएंगे हम? नहीं, ये मांगना निष्कामता, ये तो निष्कामता मांगना सकामता कैसे हो जाएगी? आंसू मांगना या निष्कामता मांगना सकामता नहीं है। सकामता माने होता है मन में अपने सुख की इच्छा रखना, अपने लिए कुछ मांगना। ये निष्कामता तो हम उनसे प्रेम करने के लिए मांग रहे हैं ना, उनके ही प्रेम के लिए, तो ये सकामता नहीं है। आंसू मांगना सकामता नहीं है। तो दीदी और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हमारे आंसू निकले दीनता के पद गा के, या जिस प्रकार के पदों से मन पिघलता हो, आंसू आता हो, उन पदों को बार बार गाना चाहिए। और भगवान से भी, महाराज जी के चरणों में भी बार बार ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे आंसू दीजिए, हमारे अंदर वो दीनता आए कि हम आंसू बहा सकें आपके चरणों में। तो ये सकामता नहीं है। Didi, sometimes what happens is when I sit for Rupudhyan, I'll be thinking that okay, today Maharaj will help me in getting tears. But when I don't get tears, I'll get nirash. Like I'll feel bad that today I did not get tears. So like, will it affect my sadhana? Like expecting from Maharaj ji, and when it does not happen, I'll feel bad. So will it be affecting my sadhana if I do like this? If I think like this. क्या बोल रही है दिव्या? आप दोबारा से बोलना पड़ेगा, बहुत एको किया आपका आवाज। Didi, like when I sit for Rupudhyan, I'll be expecting that Maharaj ji will help me in getting tears and all. But when I don't get, I'll get bad. I'll feel bad. I'll get nirash that Maharaj ji did not help me getting tears. So will it affect my sadhana by thinking like that? No, it's good that you when you sing and you wish to have the tears and everything, but still you don't get, you feel bad. It is very natural. But that time when you feel bad, you have to think that my heart is so dirty, because Srimaji explained it very well, that the reason of not shedding tears for God is the dirty heart. So probably I have performed some bad deeds in my past life. So far, you are a child, and naturally you have not performed any bad things in this life. But still, because when you sing bhajans, when you remember God, the tears do not come. It means there is some bad sanskar of past lives. So keep on doing your sadhana.
because the sadhana will purify your mind. When the mind will start purifying, then you will attain tears as well. There's one more thing, that there's some people, when they sing bhajan, immediately they feel like shedding tears. And those people cry for everything very easily. But there are some people whose heart is not that tender. So sometimes, although they have devotion, lots of devotion in their heart, but still the tears do not come. It also happens. So you just keep on doing your sadhana and wish to cry at the lotus feet of Sri Maharaj-ji, lotus feet of Sri Radha Krishna. And when the tears do not come, you should feel bad. You should feel, you should pray at the lotus feet of Sri Maharaj-ji, that lotus feet of God, that please purify my mind is so dirty. Take this mind in your hand. Control this mind now, because my mind is not listening to me. So you control it. So when this kind of feelings will increase in your mind, then naturally, then you will feel like shedding tears. When you will start crying, you will cry a lot, because you are doing practice now. Thank you, Didi. Radhe Radhe. Welcome. Radhe. Thanks, Divya. The next one is Shubham. So yeah, Shubham, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी। Radhe Radhe. दीदी महाराज जी बताते हैं कि जो राधा रानी है वही अद्वितीय तत्व हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण भी अपने आप को दास मानते राधा रानी का। तो फिर राधा रानी भी लेकिन श्री कृष्ण का दास मानती है अपने को, तो वो किस लिए मानती है? क्योंकि राधा रानी तो मतलब वो तो स्वयं शक्ति, मतलब राधा रानी। श्री कृष्ण श्री राधा को अपनी आराध्या मानते हैं, और श्री राधा रानी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती है। इसी उनका नाम राधा है। दो अर्थ होते हैं राधा के, राध्यते इति राधा, आराध्यते इति राधा। राध्यते मतलब जो आराधना करें और जिसकी आराधना की जाए, क्योंकि राधा और कृष्ण वस्तुतः दो हैं ही नहीं, वो एक ही है। येयं राधा यश्च कृष्ण रसाब्धिर देहे नैका क्रीडनार्थम द्विधाभूत। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति प्रेम की है। प्रेम की जो सबसे बड़ी स्थिति है उसका नाम है मादन। उसी मादन प्रेम को भगवान श्री कृष्ण ने साकार रूप दे दिया। ये प्रेम शक्ति श्री कृष्ण की ही है, कहीं और से नहीं आई है। ये शक्ति श्री कृष्ण की है। और द्वापर युग में जब यहाँ पर 5000 वर्ष पहले भगवान ने अवतार दिया, तो अपनी शक्ति को, उसी मादन शक्ति को जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, उसको उन्होंने साकार रूप दे दिया, अपने से पृथक कर दिया। कीर्तनार्थम द्विधाभूत। क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि वो लीला कर सके। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कि प्रेम करते कैसे, कहते किसे। जब श्री राधा ने श्री कृष्ण को प्रेम किया, जिसमें कामना की गंध भी नहीं थी, तो लोगों को पता चला कि प्रेम की परिभाषा क्या है। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा की आराधना की, तब सबको पता चला कि सबसे ऊंची चीज प्रेम है। और बिना प्रेम के, जो कहा जाता है ना, बिना राधा के कृष्ण की आराधना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये कि बिना प्रेम के आराधना का कोई मतलब नहीं है। जो उपासना है, भगवान की आराधना है, वो प्रेम युक्त होनी चाहिए, और उस प्रेम में निष्कामता होनी चाहिए। अगर तुमने कुछ भी मांग लिया, जैसे ज्यादातर भक्त लोग तो भगवान से कहते हैं ना, भवसागर से उतार दो हमें, पार लगा दो हमें, मुक्ति दे दो हमें, हमारा कल्याण कर दो, तो जो आप मांगेंगे उतना ही आपको मिलेगा। ये प्रेम जिसमें इतना रस है, जितना ऊंची अवस्थाएं हैं प्रेम की,
प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावेश, महाभाव, हर स्तर में अधिक से अधिक प्रेम का रस श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ इंटीमेसी, और उनके और श्री राधा के मध्य में जो प्रेम की परम अंतरंग लीलाएं होती हैं, उनका दर्शन, उनका आनंद, ये सब प्राप्त करने से हम वंचित रह जाएंगे अगर हृदय में प्रेम नहीं होगा, वो भी परम निष्काम प्रेम। तो श्री राधा और कृष्ण दो तो है ही नहीं, एक ही हैं। ये लीला करते हैं, इनकी लीला का लक्ष्य केवल और केवल एक है, वह है जीव कल्याण। कुछ ऐसे जीव हैं जो योगा रुक्ष हैं, यानी जो अभी भक्ति कर रहे हैं, काफी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। और कुछ योगा रूढ़ है, यानी उनकी भक्ति कंप्लीट हो गई, उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो दोनों प्रकार की लीलाएं भगवान की होती हैं, कुछ साधकों के लिए, उच्च कोटि के साधकों के लिए, और कुछ उनके लिए जिनको भगवत प्राप्ति, जो रसिक संत हैं, जो रसपान ऑलरेडी कर रहे हैं भगवान के प्रेम का, तो उनको भी तो रस देना है, उनका भी रस तो बढ़ाना है, क्योंकि प्रेम का रस तो प्रतिक्षण वर्धमान है, अनंत मात्रा में बढ़ता ही रहता है, वो उनको देना है उन्हें। इसीलिए श्री राधा और कृष्ण दोनों लीलाएं करते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए उनके विषय में कुछ भी प्रश्न करना कुछ भी मतलब नहीं रखता, वो तो दोनों एक ही एक, केवल लीला करते हैं, नाटक जिसको आप कह सकते हैं, अभिनय। थैंक यू दीदी, राधे राधे। Thank you, Bhaiya. The next one is Piyush. Piyush, go ahead, ask your question, unmute and go ahead. राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो कोई भी महाराज जी की फिलोसफी जो है फॉलो नहीं करते हैं, तो मुझे मेरी स्टडी और महाराज जी की फिलोसफी के अनुसार जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें दोनों में बैलेंस कैसे बनाए, ये पूछना था दीदी। ये तो स्वाभाविक है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके जो बाकी कलीग्स हैं वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि महाराज जी को मानना, उनके फिलॉसफी को मानना इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि और जितने भी संप्रदाय हैं या जो मानने वाले हैं भगवान को, वहां पर कुछ शारीरिक क्रियाओं की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, जिनको आप कर्म कांड कहते हैं, रिचुअल्स कहते हैं। इतनी माला कर लो तुम्हारी साधना हो गई, इतनी पूजा कर लो तुम्हारी साधना हो गई, इतनी ये पाठ कर लो तुम्हारी साधना हो गई। महाराज जी की साधना में तो कोई लिमिट ही नहीं है, स्मरण करना है, वो भी हर समय करना है, भगवान का रूप ध्यान करना है। ये बातें सबकी समझ में आने वाली नहीं है, उनको न समझ में आएंगी, न तुम्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। अपनी साधना बढ़ाओ, तुम्हारा अपना कर्म तो अलग होगा। तुम अपने कमरे में बैठ के क्या कर रहे हो, किसका स्मरण कर रहे हो, तुम चल रहे हो, क्लास में भी तुम अगर बैठे हुए हो तो तुम किसका स्मरण कर रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, ये कोई नहीं जान सकता, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। अपनी प्राइवेट साधना करो, जब मौका मिले, जहां मौका मिले बैठ के ध्यान करो, और यूं भी चलते फिरते जहां भी जाओ हर समय सोचो कि श्री महाराज जी तुम्हारे साथ हैं या राधा कृष्ण तुम्हारे साथ है, जैसा तुम्हारा भाव बनता हो। यदि श्री महाराज जी का भाव बनाना आसान है तो उनकी प्रेजेंस को फील करो, अगर श्री कृष्ण का ध्यान करना तुम्हारे लिए इजी है तो उनकी प्रेजेंस को फील करो। बस उनकी प्रेजेंस को फील करते रहना है, मन में उनका ध्यान करना है। पढ़ने बैठो तो सोचो महाराज जी बैठे हैं हमारे सामने और हम अध्ययन कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, उनको पसंद है कि हम अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे नंबर लाएं, प्रोग्रेस करें, हम उनके सुख के लिए कर रहे हैं। बस अपनी ये भावना बढ़ाते जाओ, दूसरे माने ना माने तुम्हें क्या करना है, सब थोड़ी मान लेंगे। घर में ही 4 सदस्य होते हैं, 2 मानते हैं 2 नहीं मानते,
एक मानता है, 3 नहीं मानते, सब होता रहता है और उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। थैंक यू दीदी, राधे राधे। थैंक यू पीयूष। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने लिखा है कि उनकी फैमिली स्पिरिचुअल माइंडसेट नहीं है, तो इसलिए उनके मन में फैमिली के प्रति भावना आ जाती है कि ये सब लोग कितने नीच हैं, भगवान को अपना नहीं मानते, प्यार नहीं करते। तो क्या ऐसा किसी को नीच मानना, और क्या वो ईगो का प्रतीक होगा क्योंकि वो भक्ति नहीं करते? किसी तो को भी नीच मानना, छोटी दृष्टि से देखना, यह अपराध तो है ही। अगर वो नहीं मानते भगवान को तो ना माने। अब आप ये सोचिए, तुलसीदास जी को जिसने भी शुरू में देखा होगा, या अभी आप अगर केवल प्रारंभिक लाइफ को पढ़ें सुने तो आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी यही भावना उठेगी और लोग समझते भी होंगे। प्रारंभ में तुलसीदास जी के लिए यही समझा होगा ना कि कैसा कामी है, देखो ये अपनी पत्नी में इतना ज्यादा आसक्त है, ऐसा तो कोई नहीं होता कि सांप को रस्सी पकड़ के लटक जाए, शव को लकड़ी समझ के उसके सहारे से नदी पार कर जाए, ऐसा तो कोई नहीं होता होगा। लेकिन वो तो एकदम चुटकियों में कहाँ पहुंच गए, भगवत प्राप्त संत बन गए। तो कौन किस वेश में क्या है, कब किसका क्या परिवर्तन हो जाएगा हमें नहीं पता। आपने भी भक्ति प्रारंभ की है और वो नहीं इस समय कर रहे हैं, लेकिन अंदर छिपे हुए उनके क्या संस्कार हैं, कब उनकी भक्ति एकदम बढ़ जाएगी ये कोई नहीं जानता। और नहीं भी बढ़ जाएगी, मान लो हैं भी वो ऐसे खराब लोग हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते या निंदा करते हैं संतों की, शास्त्रों की, तो हम उनके विषय में क्यों सोचें? हमें उनकी भक्ति थोड़ी करनी है, किसी के विषय में चिंतन करना ही तो भक्ति है ना। तो जब आपको पता ही चल गया कि ये भगवत प्रेमी नहीं है, इनकी श्रद्धा हमारे गुरुदेव में नहीं है, इनकी श्रद्धा शास्त्र वेदों में नहीं है, तो उनके विषय में सोचिए ही मत, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि उनके विषय में आप सोचेंगे तो आपका मन गंदा हो जाएगा ना। हमें तो अपना मन साफ करना है, दूसरे से हमें क्या लेना देना। वो साफ कर रहे हैं अपने मन को या गंदा करते जा रहे हैं, उनकी जो इच्छा है वो करें। आपने उनको समझाने की चेष्टा की एक आध बार, महाराज जी के विषय में बताया या भक्ति के बारे में बताया, उनके नहीं संस्कार थे इस टाइम, वो नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आप छोड़ो उनको, आप अपने पे ज्यादा फोकस करो, अपने कल्याण पे। अगर हम सबको देखते चलेंगे, बुराइयां करते चलेंगे, तो हमारा ही मन तो गंदा होगा। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो उसके पहले हमारे मन में वो बुराई आएगी, तभी तो हम मुंह से बोलेंगे। जब तक हमारे मन में कोई विचार नहीं होगा तो हम बोल कैसे सकते हैं? तो अगर हमने किसी की बुराई की तो पहले वो हमारे मन में आई ना, तब हमने सोचा या बोला, तो वो गंदा है कि नहीं, इसमें तो हमारी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हमने तो अपना मन गंदा कर ही दिया, तभी तो हम सोचा हमने, तभी तो हम बोले। तो हमें अपनी ज्यादा चिंता करनी चाहिए कि हमारा मन गंदा ना होने पाए, हम किसी के विषय में ऐसा ना सोचें, इसी में भलाई। उनके विषय में कुछ नहीं ऐसा बुरा सोचिए आप, क्या पता वो अंदर ही अंदर कौन है, कब उनकी भक्ति प्रकट हो जाएगी, कुछ नहीं पता। थैंक यू दीदी। अभी वी जस्ट हैव वेरी लिमिटेड टाइम, तो कोशिश करेंगे सबको लेने की, बट बहुत मुश्किल होगा, तो सब एक एक क्वेश्चन ही पूछिए। नेक्स्ट इज पीयूष राठौड़, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन। दीदी राधे राधे। राधे राधे। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि महाराज जी ने एक लेक्चर में बोला था कि मन तो हमारा इतना चंचल है कि एक मूर्ति पर मतलब किसी भी एक फोटो पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता है। कभी-कभी उनकी आँख ऐसी है, मूर्तियों का भी अगर हम रूप ध्यान करते हैं, तो मूर्ति तो स्थिर है, पर हमारा मन तो बहुत ऐसा है कि एकदम रूप नहीं बन पाता। तो महाराज जी ने बोला कि अलग-अलग करके रूप बनाओ, अलग-अलग। पर जब मैंने और भी सुना तो
आपने भी उस दिन कहा था कि एक फोटो रखो और एक ही का रूप ध्यान करो, तो मतलब ऐसे ध्यान नहीं बन पाता है, तो अलग अलग ध्यान कर सकते हैं। देखिए, महाराज जी ने जो कहा उसको समझिए आप, और जो मैंने कहा है उसको भी समझिए। श्री महाराज जी ने ये कहा है, आप उनके प्रेम रस सिद्धांत नामक पुस्तक को आपके पास है तो उसको दोबारा पढ़िए, रूप ध्यान वाला चैप्टर। महाराज जी ने ये कहा कि हमें किसी एक चित्र या एक मूर्ति का आधार बनाना है, यानी उस चित्र में कुछ उनका जो स्वरूप है, उनका मुखारविंद जैसा है और उनका श्रृंगार जैसा है, उसको आपने अपने मन में पहले भर लिया अच्छी तरह, उसको बार बार देखिए, बार बार चिंतन कीजिए कि उनका रूप ऐसा है, उनका श्रृंगार ऐसा है। और जिस समय आप रूप ध्यान करने बैठे, साधना करने बैठे, उस समय हमें उस चित्र का ध्यान नहीं करना है, उस मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, उस चित्र या मूर्ति के आधार पर हमें साक्षात श्री कृष्ण का ध्यान करना है। जैसे आपने किसी व्यक्ति का एक चित्र देखा, तो फिर वो पैंट पहने हैं, आपने उसका चित्र को देखा, तो अब आप उसका किसी भी रूप में ध्यान करेंगे तो फेस वही होगा। अब आप उनको डिफरेंट प्रकार के कपड़ों में आप सोचिए, उनके विषय में डिफरेंट प्रकार का काम करते हुए उनके विषय में सोचिए, फेस वही रहेगा। तो महाराज जी का तात्पर्य ये है कि अगर एक ही रूप भगवान का आपके माइंड में होगा और उसका ही बार बार आप चिंतन करेंगे, रोज चिंतन करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उस चित्र को आप देखेंगे और सोचेंगे भगवान का ऐसा रूप है, तो कम से कम एक रूप भगवान का आपके हृदय में बस जाएगा। फिर आप चाहे कहीं बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको आसानी से उसका ध्यान हो जाएगा। अब जो चेंज करने की बात महाराज जी कह रहे हैं, वो आप उनका श्रृंगार रोज चेंज करिए, हर मिनट चेंज करिए, उनके कपड़ों को चेंज कीजिए। कभी आप उनको बाल रूप में देखिए, कभी उनको आप 16 वर्ष का देखिए, कभी उनको रास करते हुए देखिए, कभी आप उनको सखाओं के साथ खेलते हुए देखिए, कभी गोपियों के साथ वार्ता करते हुए देखिए, वो आपकी इच्छा है। तो वो आप चेंज करिए, उनके वस्त्रों को, उनकी लीलाओं को, उनकी छवियों को, अलग अलग छवि में आप उनको देखिए, अलग अलग आभूषणों में, अलग अलग प्रकार के श्रृंगार में, कभी वो मणियों मोतियों का के सारे आभूषण पहने, कभी फूलों के हैं, कभी लाल रंग के फूलों का श्रृंगार है, कभी सफेद रंग के फूलों का श्रृंगार है, कभी गुलाबी रंग के, कभी इस मणि का श्रृंगार है, कभी हीरों का श्रृंगार है, कभी पन्नों का श्रृंगार है। वो सब आप हर मिनट चेंज कर सकते हैं, कि लीलाओं को हर मिनट चेंज कर सकते हैं। जैसे श्री राधा रानी ने विरह में कहा, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्त्रे कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। अब देखिए यहाँ पर नाथ यानी दास्य भाव का भी उन्होंने पुकारा श्री कृष्ण को, रमण प्रेष्ठ प्रीतम भाव से भी पुकारा, सखे सखा भाव से भी पुकारा, और शांत भाव से भी पुकारे हैं। हर प्रकार से हर रूप में उनका ध्यान करेंगे, वो ही श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, किसी और का ध्यान नहीं कर रही, कर श्री कृष्ण का ही ध्यान रही। लेकिन अलग अलग उनकी जो पर्सनैलिटी है, अलग अलग उनकी लीलाएं हैं, उसके अनुसार जो अलग अलग उनके रूप होते हैं, वो उसका ध्यान कर रही है। तो हम भी चेंज करें, उनका श्रृंगार चेंज करें, कि लीलाओं को चेंज करें, वस्त्रों को चेंज करें, स्थान कहाँ खड़े हैं चेंज करें। कभी आप सिंहासन पर बैठा हुआ देखें तो कभी कुंज में खड़ा हुआ देखें, कभी वो चलते आ रहे हैं झूम के गायों के साथ में ऐसा देखें, कभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं ऐसा देखें, वो चेंज कर सकते हैं। रूप वही होना चाहिए। थैंक यू दीदी।
We are running out of time, so we'll just take one last. That is Sheila Joshi. So Sheila Didi, go ahead, ask your question. राधे राधे दीदी जी। राधे राधे। दीदी जी, मेरा प्रश्न था ये श्याम सुंदर का नील वर्ण कैसे है? मेरे को बहुत उत्सुकता से बहुत दिनों से हो रही है, आप बता पाएंगे? नील वर्ण कैसे है? हाँ हाँ, नील वर्ण के, हाँ हाँ जी, श्याम सुंदर का नील वर्ण। अब मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बहुत कोशिश की है महापुरुषों ने ये बताने की कि उनका नील वर्ण कैसा है। तुलसीदास जी नील सरोरुह, नीलमणि, नील नील घनश्याम, ये 3 उपमाएं दे डाली कि नीले कमल के समान है। फिर कहा नहीं नहीं, वो नीले मणि के जो नील मणि के समान है। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो नीले बादलों के समान है। अलग अलग सबकी वो है। श्री महाराज जी ने एक बार ये बात बताई थी कि जो अलसी का फूल होता है ना, अलसी, तो जी, अलसी, हाँ, तो अलसी जो है उसको सुबह के टाइम जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो उस समय यदि हम उस अलसी को देखें, उसके जो पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं, उनको आप देखें, तो उसका जो रंग होता है अलसी का, वो श्री कृष्ण के रंग के सबसे निकट है अलसी। तो कभी आप ट्राई करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन भगवान के यहाँ एक बड़ी अच्छी बात ये है कि भगवान ये नहीं, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन क्या नहीं है कि मेरा रंग तो इस प्रकार का नीला है तो तुम इस प्रकार के नीले का ध्यान क्यों कर रही, इसी प्रकार का करो जैसा मेरा है। नहीं, भगवान कहते हैं तुम्हें जो रंग पसंद हो, नीला ही नहीं, नीला पीला हरा गुलाबी जो पसंद है तो उस रूप में उनका ध्यान करो। तो कहते हैं हम तुमको अनंत आनंद के साथ, अनंत रूप सौंदर्य माधुर्य के साथ उसी प्रकार मिलेंगे। और श्री राम और श्री कृष्ण क्योंकि ये स्पेशल भगवान थे, इसलिए इनका रंग नीला है क्या शुरू से ही? अब किस लिए नीला है ये तो कोई नहीं बता सकता, किंतु हाँ इतना तो हम लोग सोच सकते हैं कि नील, जो भी चीज अनंत है जी, वो नीली ही दिखाई देती है। समझ गए जी 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 जी। आकाश नीला है, समुद्र नीला है, जो कुछ नीला है वो सब अनंत है। तो भगवान तो का तो नाम ही अनंत है ना जी, इसलिए उनका रंग भी नीला है। समझे। ठीक है दीदी जी, थैंक यू दीदी जी। राधे राधे। राधे राधे। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी के 2 व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही फुल और पैक्ड हैं और वो एक नया ग्रुप चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए ग्रुप सी भी बना दिया है। तो वी विल पुट द लिंक ऑन द चैट बॉक्स। आप में से या आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे, ग्रुप सी में आ सकते हैं। सेम इंफॉर्मेशन ही रहेगी ए, बी और सी में, इसीलिए अगर आप ऑलरेडी ए और बी में हैं तो सी में मत ज्वाइन कीजिए। बट आई वुड हाईली इनकरेज कि आप अपने फैमिली और लव्ड वंस को इनकरेज कीजिए टू ज्वाइन। For now, you all can unmute and say Radhe Radhe to Didi. Thank you so much, Didi. Radhe Radhe. Radhe Radhe. राधे राधे। Radhe Radhe. राधे सद्गुरु सरकार की जय। राधे राधे।